آج ہمارے یہاں علماء کی خونوں کو چوسا جا رہا ہے، ہمارے یہاں علماء کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اپنے یہاں اماموں کو رکھا جاتا ہے، 6,000 تنخواہ ملتی ہے، بتاؤ 6,000 میں وہ امام اپنی زندگی کیسے کاٹے؟ جب امام کے اوپر ظلم ہو تو میرے بھائی اس گھر کے اندر اور اس گاؤں کے اندر اور اس علاقے کے اندر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ 6,000 اپنے امام کو تم دے رہے ہو، علماء کو دے رہے ہو، یہ علماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو نبیوں کے وارث ہیں، علماء کا خون چوسنے والوں اور مسجدوں کے ذمہ داروں اور مدرسوں کے ذمہ داروں، علماء کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں، اپنے یہاں کے علماء کے ناقدری کرنے والوں، سنو کل قیامت کے دن تمہیں جانا پڑے گا اور رب کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حق علماء ہیں اور یہ ایسے جو اللہ کے پر توکل کرتے ہوئے باقاعدہ کام کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے؟ تم روزانہ ہزار روپے کماتے ہو اور تیرا گھر نہیں چلتا ہے تو مولانا کو تم روزانہ 200 روپیہ دیتے ہو اور اپنے اماموں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہو۔ کیا تمہیں ذرہ برابر ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا؟ آج ہمارے یہاں جب 6,000 روپے میں اپنے مولویوں کو رکھو گے تو تمہارے یہاں اصلاح کیسے ہوگا؟ تمہارے یہاں اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں غور کرو، آج ہمارے یہاں علماء کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہے، اور آج کل وہ لڑکیاں ایسے عالموں سے شادیاں کیسے کریں؟ جب ان لڑکیوں سے علماء سے شادیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے ان کے دل میں بیٹھتا ہے 8-10 ہزار کمانے والا ہمیں کیا کھلائے گا، ہمارے میک اپ کا سامان کہاں سے لائے گا؟ اس وجہ سے ہم ایسے لوگوں سے شادی نہیں کریں گے، ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جو پیسے والے ہوں۔ ہماری یہاں کی لڑکیوں کو دیکھیے، آج مرتد کی شکار ہو رہی نا، آج ادھر سے ادھر جو جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے اندر ہے کیا؟ غور کرو میرے بھائیوں، آج ہماری مسلمان بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اب بولیے گا مولوی صاحب ہم کہہ رہے بھاگے گی کیوں نہیں؟ تم نے ان لڑکیوں کے لیے دیا کیا جن نوجوان کو تم دیتے اس نوجوان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آج میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد ہمارا یہ نوجوان نسل، ہماری یہ قوم ہماری یہ قوم نوجوان قوم میرے بھائیوں عشق میں مبتلا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 گرل فرینڈ رکھ کر کے اسی میں مستم لگا ہوا ہے، لگتا سب سے بڑی عبادت کر رہا ہے، اسی چکر میں نوجوان اسی میں ڈوبی ہوئی یہ قوم۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اور سوچئے حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، اور جب ایسی لڑکیوں سے شادی کرتا ہے کتنا چاہیے؟ 5 لاکھ۔ کتنا چاہیے؟ یہ گاڑی۔ کیا چاہیے؟ یہ ایسے مرد بنو کہ لڑکی کو دو، لڑکی سے لو مت۔ دو لڑکی کو دو، لڑکی سے لینے کا نہیں ہے، لڑکی کو دینے کا ہے۔ اور آج میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑی دولت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی دولت ہے تو وہ نیک عورت کی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے۔ اگر یہ دولت تمہیں مل جائے تو دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ اب ایسی نیک عورت بھی لاؤ اور دولت بھی مانگو۔ فقیر میرے بھائیو ایسی لڑکیاں کیوں کر تم سے شادی کریں؟ آج بھاگیں گے نہیں، آج شادی کرنے میں ایک غریب لڑکی کو 5-5 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کا باپ مان لو وہ مولوی ہے، مان لو وہ مسجدوں کا امام ہے، مان لو وہ مسجدوں کا امام ہے، 5-6 ہزار تم اس کو تنخواہ دیتے ہو۔ سوچنا، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتانا، 5-8 ہزار تم خرچہ دیتے ہو روزانہ، اگر اس کو روزانہ 200 روپیہ گھر میں خرچہ ہوتا ہو تو جو تم دیتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی سیونگ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے۔ جوان بیٹی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، ایسے عالموں سے پوچھو ان کے دل کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایسے عالم رات کی تاریکی میں جب کروٹیں بدلتا ہوگا، ایسی عالم جو رات کی تاریکی میں کروٹیں بدلتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا؟ اے اللہ، کیا عالم بننا ظلم ہے؟ کیا عالم بننا بہت بڑا پاپ ہے؟ عالم بنا، تیری دین کی خدمت کر رہا ہوں،
6-7 हज़ार रुपये मिल रहा है, अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं? अब वो चंदे में निकला, भीख मांगने के लिए निकला, कभी इसके पास गया तो कभी उसके पास गया, कभी यहाँ गया तो कभी वहाँ गया, कभी समीर के पास गया तो कभी उस अमीर के पास गया, और अमीरों ने कभी यहाँ से भगाया कभी वहाँ से भगाया। ये बाप अपने बेटी के शादी में इतनी जगहों की चक्कर मारा, इतनी जगहों में दौड़ा। अब लड़की देख रही है कि मेरा बाप मेरे लिए भीख मांग रहा है, मेरा बाप मेरे लिए लोगों से भीख मांग रहा है। वो सोच रही है मैं अपने बाप के लिए बहुत बड़ी बोझ हूँ। अब ऐसी लड़कियां, गरीब घराने की लड़कियां मजबूर है, लाचार है, गैरों के साथ भागने के लिए। ओ लोगों, तुमने अपनी बहनों को गैरों के साथ भागने में बड़ी मदद की है। अगर तुम आज भी जहेज का कारोबार खत्म कर दो, बायकाट करो अपने यहाँ से जहेज को, तो बहुत सारी बहनों की घरें आबाद हो सकती है। बहुत बहनों का घर जो जलने वाला है वो बस जाएगा, लेकिन शर्त ये कि हराम खोरी भी करो। हो सकता है तकरीरें बहुत सुनते हैं, लेकिन मेरे भाइयों जरा सोचिए, आज हमारा इमाम मौलवी साहब काम ही नहीं कर रहा है, 5-6 हज़ार में क्या काम करेगा? हाँ, वो तो 5-6 हज़ार लोगों में इधर उधर खर्चा हो जाता है। बताइए 5-6-7-8 हज़ार देने में इमाम को क्या देता है अपने यहाँ? आज अल्लाह पर क्या अल्लाह को जवाब देगा? अज़ाबी अलीम से कैसे बचेगा? मेरे भाइयों जरा सोचिए, आप गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए आप हालात कितने बुरे हो चुके हैं। आज हालात कितने बुरे हो चुके हैं। तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, और वैसे ही ईमान लाओ जिस तरीके से सहाबा ने ईमान लाया और जिस तरीके से सहाबियात ने ईमान लाई। हाँ, वैसे ईमान लाने की ज़रूरत है। अल्लाह देख रहा है, इस वजह से कोई गलत काम न करो। मरसद इब्ने अबी मरसद का वो वाक़या भी आपने पढ़ा होगा। मरसद ने जब कलेमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब मरसद ने ये कलेमा पढ़ लिया और नबी को अपना आइडियल और अपना नमूना और अपना आइडियल जब मान लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, तो नबी अकरम की बातों के ऊपर बाकायदा हाथ में हाथ रख कर के बेअत कर ली। ऐ नबी, आज के बाद हम ज़िना नहीं करेंगे, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, आज के बाद हम हराम खोरी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी, हम आपके हाथ में हाथ रख कर के बेअत कर रहे हैं कि आज के बाद हम ज़िना नहीं करेंगे। और पहले के लोग जो ज़बान दिया करते थे, कहा उसके ऊपर जम जाया करते थे। आज हम भी अपनी ज़बान से इकरार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ? आज हमने भी कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमने भी कलमा पढ़ा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वही अल्लाह रिज़्क़ का मालिक है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम रोजी रोटी में इधर से उधर फिसल रहे हैं। आज रिश्ते हराम अपना रहे हैं, रिश्ते हलाल को छोड़ करके रिश्ते हराम अपना रहे हैं। और जब हमने अपनी ज़बान से इकरार किया है वह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हमने इस बात का इकरार किया है कि अल्लाह के रसूल आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम अल्लाह का रसूल और उसका बंदा मानते हैं, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं। और आपने जो शरीयत लाई हुई है उसके ऊपर बाकायदा हम पूरे तौर पर जम जाते हैं। और आज भी हम इकरार हमने किया है, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर ये ज़िनाकारी कहाँ से आई? आज हमारे समाज के अंदर ये शराब नोशी कहाँ से आई? ये जुए के अड्डे मुसलमानों के यहाँ कहाँ से खुल गए? आज मुसलमान जुए के अंदर डूबा हुआ है, आज मुसलमान शराब के अड्डों में आपको मिलेगा, आज मुसलमान ज़िनाकारियों के अड्डों में आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, ईमान कहाँ गया जब तुमने नबी को नबी मान लिया है? और नबी अकरम ने कहा है कि कोई आदमी किसी लड़की को अगर टच करता है, किसी गैर महरम को टच करना हराम है, किसी गैर महरम को बगैर निकाह के टच करना हराम है। आज वो सारा काम हो रहा है मेरे भाइयों। सोचिए,
मरसद इब्न अबी मरसद का ईमान का जायजा लीजिए। हजरत मरसद ने कलेमा पढ़ लिया कि मैं ज़िना नहीं करूंगा। हजरत मरसद बहुत दिनों के बाद जब मक्का आए और मक्का आने के बाद जब उसके गर्लफ्रेंड को खबर हुई कि अनाक तेरा गर्लफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड आज मक्का आया हुआ है, और वो लड़की निकलती है, अनाक लड़की निकलती है और मरसद की तलाश में निकलती है। कभी इस गली में ढूंढती है, कभी उस गली में ढूंढती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है, चलो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात कर लूँ। कभी इधर भागी, कभी उधर भागी। रात की तारीकी में चलते चलते उस अनाक लड़की को मरसद आदमी मिल गया, उसका बॉयफ्रेंड मिला। बॉयफ्रेंड के पास जाकर के बॉयफ्रेंड को पकड़ना चाहिए और हाथ पकड़ लिया। आई मेरे बॉयफ्रेंड तुम कहाँ थे, तेरे बगैर मेरी रातें नहीं गुजर रही है। हजरत मरसद ने हाथ छुड़ाया और कहा आई अनाक अब तुम मेरे हाथ को मत हाथ लगाओ, अब तुम मेरे हाथ को टच मत करो, अब तुम मुझे छूने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, इस वजह से आई अनाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैंने वादा किया है कि मैं ज़िना नहीं करूँगा। आई लड़की तेरा छूना भी गुनाह है और तेरा छूना भी ज़िना है, इस वजह से आई लड़की मैं तेरे हाथ को टच नहीं कर सकता। अनाक कहती है ये मोहम्मद की बातें छोड़ो, ये अल्लाह की बातें छोड़ो, मोहम्मद की बातें छोड़ो, चलो हम दोनों इश्क करते हैं, इश्क में डूबते, रात की तारीकी में एंजॉय करते। चल मेरे बॉयफ्रेंड चल, रात की तारीकी में कोई देखने वाला नहीं है। मरसद का जवाब सुनो, मरसद ने कहा था ऐ अनाक तुम कह रही हो कोई देखने वाला नहीं है, अब मेरा ईमान अल्लाह के ऊपर इतना ज़्यादा है कि मेरे नबी ने कहा है कि अर्श के अंदर मोहम्मद, अर्श के अंदर अल्लाह ताला है और फर्श के अंदर जितनी सारी चीज़ें उन तमाम चीज़ों से बाखबर है अल्लाह। इस वजह से ऐ अनाक मुझे अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है और ईमान है कि अल्लाह ताला अर्श के अंदर होते हुए हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इस वजह से ऐ अनाक लड़की मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। लड़की आई गलत काम करवाने के लिए, लेकिन मरसद जैसा आदमी ने उसे टच नहीं किया, उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उसका ईमान था कि अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला का रिकॉर्डर हमें रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे भाई को जरा सोचिए, आज का मुसलमानों का अगर ईमान इतना मजबूत हो जाए तो जलसों में हसीनाएं आए, लड़कियां आए और एक से कपड़े पहन कर के आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईमान मरसद बिन मरसद की तरह होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। इस वजह से अपने आप को अगर चतुर और चालाक समझते हो तो भाई फर्क किया लोगों, अगर तुम चतुर बनना चाहते हो तो सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक होशियार अक्लमंद वो है अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व आमिला लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा चतुर आदमी वो है जो मरने के बाद की तैयारी करता है।